chief guest by presenting a bouquet. I request Mr. Himanshu Kumade to present a bouquet to our principal sir, Shivardhan Agrawal. Thank you, sir. Now, I would like to request the principal sir to welcome the chief guest and this august gathering to his welcome speech. नमस्कार, कैसे हैं आप? So please give a big hand to sir. Thank you. आचार्यं पद्मादते पदं शिष्ये स्वमेधया शिष्यस्य पद्मादते
पदम चेवाचार्य स्वयं। अर्थात गुरु अपनी ज्ञान शक्ति से शिष्य को उच्च स्थान प्राप्त करता है और शिष्य अपनी मेहनत और ज्ञान से गुरु को उच्च स्थान प्रदान करता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। Esteemed chief guests, respected parents, dedicated teachers and dear students, it's my great pleasure to welcome you all to our school investiture ceremony. Today we came together to celebrate a significant event in the academic calendar, the formal induction of our new student leaders for the academic year. This ceremony is not just a tradition but a testament to the trust and responsibility we bestow upon our students. Today, we have the unique pleasure of having a distinguished guest among us, someone whose dedication and service to our society is truly commendable. Please join me in warmly welcoming our chief guest, Shri Premveer Singh, IPS, the Inspector General of Police, Surat. Please give a big hand for sir. Shri Premveer Singh has an illustrious career in the Indian Police Service, marked by his unwavering commitment to the maintaining law and order and his relentless pursuit of justice. His leadership and courage have been a source of inspiration not only to his colleagues in the police force but also to the people at large. In his esteemed position, Shri Premveer Singh Ji plays a crucial role in safeguarding our society. It is essential to understand that crime is any act that goes amongst the established laws and norms, causing harm to individual or society as a whole. The presence of such a dedicated officer reminds us of the importance of upholding law and order to ensure a safe and peaceful environment for all. We are deeply grateful to Shri Premveer Singh for accepting our invitation and gracing this event. With his presence, despite his busy schedule, his participation is a testament to his support for educational institutions and his belief in nurturing future leaders. It is truly inspiring for our students to see such a distinguished figure in our middle, reinforcing the value of discipline, integrity and service to the community. Once again, I extend my heartfelt gratitude to Shri Premveer Singh Ji for being here and with us today. Your words and presence are invaluable to us and we look forward to hearing your insights and guidance. इन्वेस्टिचर समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम नेतृत्व और सेवा करने की आपकी क्षमता को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब हम आपकी उपलब्धियों का उत्सव बनाते हैं और आपको ऐसी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो हमारे स्कूल के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ एक पद पर बने रहना नहीं है, इसका मतलब एक रोल मॉडल बनना है और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा का स्रोत बनना है। हमारे नवनियुक्त छात्र प्रतिनिधियों का अभिनंदन। हमें आप पर विश्वास है कि आप अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और हमारे स्कूल समुदाय में सकारात्मक योगदान देंगे। छात्र प्रतिनिधि के रूप में आपके पास अपने साथियों के जीवन में बदलाव लाने, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने और हमारे स्कूल के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने का अवसर है। याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब आप हमारे स्कूल के राजदूत हैं और आपके कार्य और निर्णय हमारे समुदाय की संस्कृति और वातावरण को आकार देंगे। मैं आपको विनम्रता और समर्पण के साथ इस जिम्मेदारी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ईमानदारी, करुणा की भावना, लक्ष्य के साथ नेतृत्व करें, समावेशी बने और अपने साथियों की बात को सुने और हमारे स्कूल को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में आपकी यात्रा चुनौतियों और अवसरों से भरी होगी, पर मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप इस पर खरे उतरेंगे और हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। Your journey as a leader will be filled with challenges and opportunities, and I have no doubt that you will rise
to the occasion and make us all proud. In conclusion, I would like to once again thank our chief guests, parents, teachers and students for being a part of this special occasion. Let us now witness the glimpses of how our school's council representatives were elected through digital mode. Thank you and let us all enjoy this momentous occasion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. सूरज सजला है सपनों को दो परवाज़ है उड़ने की तमन्ना है दिया हमने सूरज सजला है सपनों को दो परवाज़ है उड़ने की तमन्ना Investiture means a formal investing of a person with authority, power, rights, office, and dignity. Person filled with knowledge, fear of God, respect to elders, respecting the rules and regulations of this education portal, love and reverence to parents, and love for the nation. Giving children responsibility and authority is important because it teaches them to be responsible and caring. The school student council is elected after a rigorous and a democratic process to train them in leadership skills, wherein the students go through several processes to get elected to the much coveted student council body. Let us now know more about the school election process which is followed in our school. The school election process for a various posts like head boy, head girl, sports captain, vice captain, cleanliness captain, vice captain, sports captain and vice captain started with filing of nomination papers. 44 students filed their names to contest the school election. The school election committee then reviewed the nominations, interacted with principal sir and selected final candidates for election. Before the election day, the candidates visit various classrooms and met with students to gather their votes. On the election day, students from class 5th to 12th voted using e-ballots. After the election, the next phase was counting of votes. The votes were counted in the presence of all the school committee members and one house member from each. Ready to march with powerful stride and unwavering determination towards the dice. Ladies and gentlemen, the sound of the drum signals the beginning of the investiture ceremony. Let us celebrate this significant occasion and honor the student council member who will be taking on new roles and responsibilities. The school student council is led by head boy Jigyasu Sangvi and head girl Asma Bhulla. I request the head boy and the head girl to come forward for the oath. I, head boy Asmabullah is the head girl of Narendra Vidya Bhavan's firmly pledge to my best that I will carry on my duties to the fullest satisfaction of my superiors. I promise to uphold the values of the school, to take lead interest in all school activities, help my schoolmates, obey my teachers, and entire beautiful family. I promise to be disciplined at all times. I promise to keep up the rules and regulations of the school. I will try to address the problems of students with great consideration. I shall be honest, dutiful, polite, and well-mannered. I solemnly take myself to the selfless service of my school. I shall try to be a picture of courage and confidence. I will be synergetic to all my school activities. I take my endeavor to take to the heights in every sphere. To keep my school flag flying high by holding myself a better student of my alma mater, a better citizen of our country in the years to come. Miss Roy as cleanest captain, Asana Dwight as cleanest vice captain, Adyabla and Mehul vice captain Pratap Anjali Sharma is the vice captain Priyanshu Rathod as dedication house captain, Sakshi Modi as dedication house vice captain
of wisdom on this auspicious occasion to encourage our newly elected student council members of our school. Respected principal of this school, Shri Gandhara Agarwal, teachers, students, and parents. Very good morning to everyone. आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के साथ इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में आकर के और आपसे बात करने का अवसर मिला है। इतने दूर दराज के स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं देखकर मैं दंग हूँ। बच्चों का जो टैलेंट मैंने देखा है हर एक क्षेत्र में, वो उनके म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, वो सब अद्भुत है। निश्चित रूप से बच्चों में इतने अच्छे तरीके से इतनी सारी विधाओं को इनकलकेट करने में प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, ये दिखता है। इतने सुदूर इलाके में इतनी स्तरीय शिक्षा यहाँ के बच्चों के लिए निश्चित रूप से एक वरदान है। जो सिस्टम्स स्कूल ने बनाए हैं बहुत ही अच्छे हैं। जिस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस में देख रहा था, तो जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं, लोकतंत्र का अर्थ है जन भागीदारी हर एक चीज में। आप सिर्फ लोकतंत्र का मतलब किसी आदमी को चुन देने का नहीं होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि आपसे संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके समाधान में आपकी सक्रिय भागीदारी है, तो वो लोकतंत्र। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बच्चे हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। जो बच्चे आज प्रीफेक्टोरियल बोर्ड में आए हैं, मैं उनको खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये बच्चे पूरे वर्ष स्कूल में बाकी साथी विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनका हल करने में स्कूल और टीचर्स की मदद करेंगे और अपने साथी विद्यार्थियों की भी मदद करेंगे। ये जो टेन्योर है 1 साल का इनका, ये इनको नेतृत्व की क्षमताएं विकसित करने में मदद करेगा। जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको और ज़्यादा परिष्कृत करेगा। लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो है क्या? हम में सब में एक लीडर है। जो लोग इलेक्शन नहीं जीते हैं, जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, उनमें भी नेतृत्व की क्षमताएं हैं। कुछ लोग, फर्क ये है कि कुछ लोग इन चीजों को महत्व देते हैं, कुछ लोग इनको महत्व नहीं देते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने जब ये बात आई होगी कि अभी अपने कैप्टन्स का इलेक्शन हो रहा है, आप में से कुछ ने सोचा होगा
इसमें क्यों पढ़ना है? आपको इसके अलावा शायद कोई और चीज ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए आपने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमेशा हर एक आदमी में और बच्चा जो है वो भविष्य का मनुष्य वयस्क है, तो एक खास क्षमता हर एक आदमी में होती है, हर एक बच्चे में होती है। वो क्षमता कब निकल के आती है? जब उसकी जरूरत होती है। आपको रामायण का एक प्रसंग याद होगा कि सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई और बीच में अथाह समुद्र है, उस पार लंका है और 7 लोग हतोत्साहित बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये पार कैसे होगा। तब जामवंत हनुमान से कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे हनुमाना। आप पवन पुत्र हैं, आपके अंदर पवन की विशाल ताकतें हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? जाइए, समुद्र पार करिए और लंका पहुंचिए। ये जो क्षमता है वो हनुमान के अंदर थी, उनके अंदर वो टैलेंट था, लेकिन बताया किसने? जामवंत ने। कभी कभी हमको हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, हमारे अंदर जो गुण हैं, वो बताने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सबके भीतर एक ऐसा ही हनुमान सुषुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, सो रहा है। उसको जगाने की कोशिश करिए। आप सब बहुत टैलेंटेड हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपको करना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी एक बच्ची थी यहाँ पे बात कर रही थी कि मैं तो IPS बनना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे सपने देख रहे हैं। सपना देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। टीचर्स जो है वो आपकी मदद करने के लिए हैं। आपको आपके अंदर की क्षमताएं तो वो पहचानते ही हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। हाँ? गुर सूबा जिन पंथ दिखावा। हाँ? गुरु जो है वो सुए की तरह है जो रास्ता दिखाता है, पर चलना उससे आपको है। आपके जो टीचर्स हैं, मैं प्रिंसिपल साहब का जो देख रहा था कि आपके यहाँ पर एक ऐसी स्पोर्ट्स टीचर हैं जो 5 खेलों में नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। अब ऐसी टीचर, ऐसा स्पोर्ट टीचर तो सूरत के स्कूलों में नहीं है। तो इन टीचर्स को का लाभ आपको लेना है बच्चों, है ना? स्कूल ने आपको दे दिया, प्रिंसिपल साहब ने आपको ला करके दे दिया, पर अब उनसे आपको जितने 5 गेम तो उनको आते हैं, तो कम से कम उन 5 गेम पे मेहनत करिए, सीखिए। आजकल आप लोग, आजकल ओलंपिक चल रहा है, देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हो ना? अब आप ये देखो कि जो
पदक जीतने की तो बात अलग है, जो लोग हार रहे हैं उनका नाम भी हर रोज अखबार में आता है। जो लोग जीत रहे हैं पदक उनका तो नाम आता ही आता है, जो हार रहे हैं उनका भी नाम आता है कि ये इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था लेकिन हार गए। हार भी कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका भाग लेना इतना महत्वपूर्ण है कि वो हार भी एक खबर बनती है। तो खेलों को आत्मसात करिए अपने जीवन में, और उसमें जो जिस तरह से टैलेंट है, जो सुविधाएं हैं, उनके हिसाब से आगे बढ़िए। खेलों में एक बहुत बड़ा कैरियर है। सिर्फ यही नहीं है कि आप नौकरियां करें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऑब्वियसली बनिए, लेकिन अगर आप खेलों में भी जाते हैं तो वहाँ भी एक उतना ही बड़ा कैरियर है जितना किसी और क्षेत्र में है। सो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। दूसरी एक चीज़ वो है आपकी संगति। आपके दोस्त कौन हैं, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आप किससे सलाह लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि आपके साथी कौन थे, आपके मित्र कौन थे। और अगर आप पिछड़ते हैं तो इसमें भी आपका जो साथ है, आपका जो सर्कल है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपके माँ बाप आपको बताते होंगे बेटा इस बच्चे के साथ मत जाना, अच्छा नहीं है, लेकिन तब आप नहीं समझते हैं। आपको अब समझ में आता है जब आप 40 साल के हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि मम्मा पापा कहता था कि बराबर नहीं है ना, हमें है ना भेगा थे ही नहीं, आग की लाइट बगाड़ी नहीं थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक डॉक्टर है, मेरे भाई का दोस्त है। तो जब वो साथ में हॉस्टल में रहता था तो मैं कभी कभी मिलने जाता था अपने छोटे भाई से। तो वो कहता था कि भाई साहब मैं बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे नाना जी, उसके नाना जी बोलते थे कि बेटा क्लास में उस बच्चे के साथ में दोस्ती करना जो सबसे होशियार हो। तो कि मैंने वो नाना जी की बात याद रखी और क्लास में जो अच्छे बच्चे होते थे उनके साथ में हमेशा लगा रहा, और आज जो है इज अ डॉक्टर एंड गुड। तो संगति का जो असर है वो ये होता है कि फिर रामायण में सभा याद आ गई, आपको शायद समझ में नहीं आएगी फिर भी बोल देता हूँ। पवन चढ़े रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचह मिले नीच जल संगा। जो धूल है, धूल जब हवा के साथ होती है तो वो आसमान चढ़ जाती है, और वही धूल जब पानी में मिल जाती है तो वो कीचड़ हो जाती है। तो इसलिए हमको ये डिसाइड करना है कि हमें हवा के साथ जाकर के आसमान की सैर करनी है या नीचे कीचड़ में मिलना है। ये जो डिसीजन है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर
आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने अपने एरियाज में, जो कर रहे हैं उसको खूब अच्छे से करिए, खूब मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी करिए आप। यहाँ से आपको जो काम दिया जाता है वो काम करिए, हर रोज करिए, इसको कल पर मत टाल दीजिए। हर दिन एक नई यात्रा है और हर दिन एक पड़ाव है, पर जो पड़ाव है वो अगले दिन की यात्रा की तैयारी भी है। तो हमेशा नया सीखते रहिए, पढ़ने की आदत रखिए, किताबें पढ़िए। आपके स्कूल में लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी किताबें होंगी, उनको पढ़िए। लिखने की कोशिश करिए, जो विचार मन में आते हैं उनको लिखिए। आपने तक 12th फेल फिल्म कौन ने देखी है? काफी लोगों ने देखी है। उसमें वो जो हीरो है वो एक जगह जाता है और वो कहता है कि मुझे ना वो उसके रिटन में मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो किसी सिलेक्टेड आईएएस के पास जाता है, बोले मुझे क्या करना चाहिए, तो बोले कि तू लिखने की आदत डाल, कोशिश कर। तो कहता है वो तो मैं खूब लिखता हूँ, तो बोले कि ठीक है तू अपने बारे में लिखे एक पेज, है ना। और जब वो लिखना कोशिश करता है तो वो एक पेज अपने बारे में नहीं लिख पाता है। तो ये क्या है, ये लिखने की आदत जब नहीं होती है तो हमको परेशानी होती है। हमारे पास विचार बहुत होते हैं लेकिन हम उनको क्रमबद्ध तरीके से लिख नहीं पाते हैं, और जब लिख नहीं पाते हैं तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। जज अगला कैसे करेगा? लिखने पे करेगा, है ना। तो पढ़िए और लिखिए और आगे बढ़िए। 2 पंक्तियां हैं, उसके साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात। कुछ लिखकर सो, जब सोने जाओ तब कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो। तू जिस जगह पर उठा सवेरे उससे कुछ आगे बढ़कर सो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। With this, we would like to wind up the program. So I request Priyanka. And gracious good morning to one and all present over here. Honorable Chief Guest, respected Secretary Sir, esteemed Principal Sir, respected teachers, dear parents and my dear friends. On behalf of Bharatiya Vidya Bhavan's GIPCL Academy, I, Priyanka Narana, extend my heartfelt gratitude to all of you for gracing us with your presence at this momentous investiture ceremony. Please rise as we honor our national anthem. School, attention! Standardies, attention! School, get ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you.